राहुल गांधी 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर थे और इस दौरान 18 दिसंबर को उन्होंने बर्लिन स्थित हर्टे स्कूल में छात्रों को संबोधित किया। कांग्रेस ने 22 दिसंबर की रात इस बातचीत का 1 घंटे लंबा वीडियो जारी किया और इस वीडियो में राहुल गांधी ने बीजेपी पर भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी संविधान के उस मूल भावना को खत्म करना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने देश के संस्थाओं पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, पहले वो बयान सुनिए, उसके बाद आगे की कहानी आपको बताएंगे। What's going on actually is a fight between two visions of India, and it's not me who's walking or me who's doing it. There are millions of people in India who have a completely different vision of India than the government of India, than the RSS. And this is not a new thing. This is not something that has started 10 years ago or 15 years ago. There have always been two visions of India. There has been, in Indian history, throughout Indian history, the democratic impulse, conversations between people, decisions through consensus, and there has also been the idea of a king, right? And essentially, that's the fight taking place. Are you going to be ruled by one person, by the whims of one person? Or are you going to be ruled by a conversation? And there are people on both sides of that equation. There are many people in India who feel actually we should have a strong leader and nobody should question him, and that's it. And let's not have all this discussion. It's a waste of time. And then there is the other side that says, listen, India is actually too complex, too diverse, speaks too many languages, has too many different ideas for one person to decide its future. राहुल गांधी ने आगे ये कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं और सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं पर केस दर्ज कर रही है, बीजेपी नेताओं पर कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाता। विपक्ष और बीजेपी के बीच संसाधनों की असमानता पर सवाल जब उनसे पूछा गया तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है और विपक्ष को इससे निपटने के लिए रास्ते तलाशने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम विपक्षी प्रतिरोध की एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो कि सफल होगी। We fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. The ED, the CBI, these people land up. So there is an atmosphere in India where the institutions are not performing the role that they should be performing. From our perspective, Congress perspective, we helped build the institutional framework. So we never viewed it as our own institutional framework. We viewed it as the institutional framework of the country. और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के जो खराब प्रदर्शन रहे हैं, इस पर जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने इसके जवाब में वोट चोरी का मुद्दा फिर से उठाया और उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट चोरी करके सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना और हिमाचल में भी देखे तो चुनाव जीती थी, हरियाणा की बात कुछ अलग हो गई। बीजेपी के तरफ से वोट चोरी का आरोप उन्होंने लगाया कि वोट चोरी कर रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वोट चोरी के बदौलत ही महाराष्ट्र में भी बीजेपी चुनाव जीती है, चुनाव निष्पक्ष नहीं रहा है। चुनाव आयोग से इस संबंध में मैंने सीधे सवाल पूछे थे, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर भी राहुल गांधी का कहना हुआ कि सरकार के हस्तक्षेप से
इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। दिल्ली में प्रदूषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजधानी के बाहर स्थित उद्योगों के कारण ही प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है और अगर उन्हें सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो हालात में सुधार संभव हो सकते हैं। We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we are asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति फैलाना चाहती है। प्रदीप भंडारी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि लोग आपस में लड़ेंगे, भारत असफल हो जाएगा, और क्या भारत में प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति भारत को असफल होते देखना चाहेगा? राहुल गांधी कांग्रेस और अपने वैचारिक संरक्षण जॉर्ज सोरेस के साथ भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति फैलाना चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी की हर्टे स्कूल में चर्चा की कुछ जानकारी 18 दिसंबर को सामने आई थी, जिसमें राहुल गांधी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना की थी। तब उन्होंने ये कहा था कि संघ प्रमुख खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि सच्चाई का कोई महत्व नहीं है, शक्ति महत्वपूर्ण है, और यही उनमें और हम में अंतर है। राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के आमंत्रण पर 3 दिवसीय दौरे पर 17 से 20 दिसंबर तक जर्मनी गए थे। ये अलायंस दुनिया भर में 117 प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियों का एक समूह है, प्रमुख समूह इसे माना जाता है। और अब उनके बयान का वीडियो जब जारी हुआ तो इस पर फिर से एक बार सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी को भारत को अशांत करने का आरोप लगा रही है। अब आने वाले समय में इस पर कांग्रेस क्या पलटवार करती है, ये समय से पता चलेगा। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।